Hello everyone, myself Radhika. Welcome back you all. I am here to teach you the features of federalism. In previous class we learnt meaning of federalism. So what are the main features of federalism? Without that federalism is meaningless. So here is some main characteristics or features of federal government. तो features of federal government क्या होते हैं? The main features of federal government. Here is a one question for the board question कि what do you mean by the federalism and what are the main features of federalism? This is very important question for the point of view of board. So first of all, the main characteristics of federalism is two or more level of government. Two or more level of government. So federalism is a system of government in which the government power is divided between a central authority and its constituent units. Constituent units क्या होते हैं? Constituent units यानी कि जो छोटी छोटी states हैं या another units हैं उसमें जो powers हैं it is divided. So two or more level of government. तो फेडरलिज्म का जो बेसिक फीचर है दैट इज पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में जो है वो डिवाइड होती है. सो वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. इन दैट मैनर वन गवर्नमेंट इज फॉर द एंटायर कंट्री. एक गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी? एंटायर कंट्री के लिए. एंटायर country. So that government is called the central government and one government is another government is at the state or provincial level. Provincial level पर कौन सी होगी? That is the state government जो कि state government के state के लिए काम करेगी. So we have the two or more level of the government. जैसे कि last chapter में आपने पढ़ा power sharing में कि here is the central government, after that the state government and the local government. Or in some countries we have a two type of government and some countries have a two or more level of government. In that manners powers are divided. In that manners power जो है वो divide होते हैं. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? That structure is known as federal structure. And India is follow the federal form of government. That structure is known federal structure. So the second basic feature of federalism is supremacy of jurisdiction. Supremacy of jurisdiction. In a federal government, judiciary given supremacy over other two organ of government. Jurisdiction जो है, judiciary जो है, judiciary क्या करती है? We have a three type of, in power sharing you have studied about that कि we have a three organ of parliament. Parliament के three organ है. Three organ कौन से हैं? One is legislature, second is executive and third is judiciary. So judiciary क्या करती है? Judiciary is the supremacy over the another two government. ये क्या है? ये supremacy करती है. कैसे करती है? Because it protects the constitution. ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है. इट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड थिंग क्या करती है? इंटरप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को. एंड थर्ड डिसाइडिंग द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. इसके बाद और क्या करेगी? जो सेंटर के बीच में या फिर स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पर कौन वर्क करेगा? जुडिशरी जो है, कोर्ट जो है वो काम करेगी. सो कोर्ट क्या होगी? अनदर ऑर्गन्स के ऊपर ये सुपरमेसी जो है वो क्रिएट करती है. तो दैट इज द अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर क्योंकि यहाँ पर ये पावर्स जो है वो क्या है? इक्वल लेवल पर लाई कर रहे हैं. थर्ड जो है इसका इम्पॉर्टेंट फीचर, द थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर इज द सेपरेट jurisdiction. Separate jurisdiction. In separate jurisdiction, different tier of government governs the same citizen.
different tier of government govern the same citizen जैसे कि पता चल ही रहा है इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट क्या कर रही है. वी हैव अ डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट. यू हैव अभी आपने पढ़ा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. अब यहाँ पर डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट क्या कर रही हैं, गवर्न्स द सेम सिटीजन जो है वो क्या है, दे ऑल आर सेम. कि वी आर लिविंग इन यूपी, मे बी हम यूपी में रह रहे हैं, मे बी जो सम पीपल आर लिविंग इन राजस्थान, कोई राजस्थान में रह रहा है, सम पीपल आर लिविंग इन गुजरात, कोई गुजरात रहा है. बट वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है. तो सिटीजन तो सेम हो गए जो यूपी में रह रहे हैं, जो राजस्थान में है. तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, बट डिफरेंट टीयर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो है लोकल गवर्नमेंट है. ये लोकल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. लेकिन अलग अलग जो है ये क्या है, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न्स द सेम सिटीजन तो सेम है, लेकिन गवर्नमेंट जो है दैट इज डिफरेंट. एंड वी हैव अ सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन ऑल्सो. इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ज्यूरिसडिक्शन भी सेपरेट है. वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट, वी हैव अ हाई कोर्ट एंड वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो जैसे जैसे हमारी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द कोर्ट्स ऑल्सो. सो हियर इज अ सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन. The fourth main feature is specification of jurisdiction. Specification of jurisdiction. Jurisdiction जो है वो specified किया, जैसे कि अभी बताया कि different type of court we have, Supreme Court, High Court and the District Court. The jurisdiction of the respective level or tier of government are specified in the Constitution. And this specification, ये specification कैसे है, according to the Constitution, because that provision is according to the Constitution. ये Constitution में दिया है. So we have a different type of the jurisdiction. We have a separate jurisdiction, and this separate jurisdiction is specified by the Constitution, क्योंकि Constitution में इसको specified कर दिया गया है. समझ आ गया? Got it? Now the next important feature is the rigid constitution. Rigid constitution क्या होता है? Rigid constitution. अब इसमें क्या आएगा? Rigid constitution में आएगा, the fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. It means कि fundamental provision, जो हमारे fundamental provision है या जो भी provision दिए हुए हैं, हम उसमें या हमारे जो laws हैं उसमें कोई भी change जो है with unilaterally क्या होता है, unilaterally होता है कि कोई भी single level of government, we have a different type of government, you have a central government and have a state government also. So कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या है, दैट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल जो प्रोविजन है, सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट या सिंगल स्टेट गवर्नमेंट दे कैन नॉट टेक द डिसीजन यूनिलेटरली. अकेले जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते. इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, दे हैव अ कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दे नीड अ कंसेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उनकी रजामंदी के बिना नहीं हो सकते. फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कोई भी लॉ पास होता है तो हम क्या करते हैं, पहले क्या होगा कि मे बी वो राज्यसभा से या फिर जो है लोकसभा से पास होता है. सो दैट इज द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कि यूनिलिटरली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, कि अकेले जो है वो अपने लेवल पर डिसीजन नहीं ले सकती, उसको क्या करना होगा. इसीलिए जो है हम इसको अलग अलग जो असेंबलीज हैं वहाँ से इसको पास आउट कराया जाता है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम. स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम. अब दोनों गवर्नमेंट जो हैं, ये तीन गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं,
क्या, ताकि जो वो अपनी ऑटोनॉमी है उसको प्रॉपरली जो है रन कर सके। दे हैव अ स्पेसिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि कैसे जो है उनको अपनी ऑटोनॉमी को रन करना है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाई टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ताकि जो है वो अपना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है उसको चला सके। The last and the very important, that is the dual objectives. Dual objectives. अब dual objectives क्या होते हैं? The federal system has dual objectives. पहला ऑब्जेक्टिव dual यानी कि डबल ऑब्जेक्टिव है इसके। फेडरलिज्म जो है डबल ऑब्जेक्टिव पे काम करेगा। फर्स्ट थिंग क्या होगी इसमें? फर्स्ट इज दैट सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, ये सेफ गार्ड करेगा, कंट्री की जो यूनिटी है उसको प्रमोट करेगा। सेकेंड थिंग, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। हमारी जो रीजनल डाइवर्सिटी है कि जैसे कि इंडिया जो है हमारी एथनिक कॉम्पोजिशन है, रीजनल डाइवर्सिटी है हमारी, रीजन में अलग अलग जैसे जैसे रीजन में जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है, हमारी लैंग्वेजेस जो हैं वो बदल जाती हैं। तो इस लेवल में क्या होगा कि रीजन वाइज है, स्टेट वाइज जो है एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, बट एट द सेंट्रल लेवल हर पर्सन अपने आप को, क्योंकि दे ऑल अंडर द वन अम्ब्रेला, ये सब जो है एक सिंगल अम्ब्रेला किसके नीचे है? सिंगल अम्ब्रेला क्या है? दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द इंडिया के नीचे बहुत सारे स्टेट हैं। तो रीजनल डाइवर्सिटी जो है उसको प्रमोट करता है। अब अलग अलग उसने पावर्स दे दी फेडरलिज्म में, लेकिन यहाँ पर उसने डुअल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट किया। पहला क्या किया? सेफ गार्ड किया, यूनिटी जो है उसको प्रमोट। पावर्स को शेयर करने के साथ क्या होता है, जब डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़े से पावर्स अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किए, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि उन्होंने यूनिटी ऑफ द कंट्री की प्रमोट किया, यूनिटी जो है कंट्री की बनी रहेगी। सेकेंड थिंग क्या होगा, रीजनल डाइवर्सिटी जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होने के बाद भी उनकी जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो बिकॉज दे आर अंडर वन अम्ब्रेला, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और दैट इज इंडियन गवर्नमेंट, तो वो उसके नीचे है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है हमारी कंट्री की जो यूनिटी है कंट्री की वो भी सेफ होगी, साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। So that is the important all the features of federalism. So maybe hope आपको ये सब समझ आ गया होगा। In next video we will take the next topic.